to the dugout. मैं हूँ आपकी होस्ट महक खोखर और हम 7वें दिन में पहुँच गए हैं of the ICC T20 World Cup 2026 और so far हमने देखा कि थोड़े से ups and downs इस World Cup में आए हैं. जो associate teams हैं, the emerging nations, उन्होंने हमें दिखाया that they are no less than other teams. They've improved quite a lot और उनसे यानी कि nobody should take them lightly. अगर हम फिर उसके बाद में अगर हम बात करें of course of जो हमारे full member nation teams हैं, जब उनका आपस में मुकाबला हुआ एक दूसरे के साथ तो कुछ ने हमारी एक्सपेक्टेशंस एक्सीड कर दी, कुछ ने जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे हट के हमें रिजल्ट्स और परफॉर्मेंसेस दिखाए हैं. सो लॉट्स ऑफ एक्शन we've seen so far in the World Cup and we've got lots of action and lots to talk about coming up as well. But before we move any further, I want to introduce my co-host for today, which is Saad Khalid. Assalamu alaikum Saad, कैसे हैं आप आज? I'm good, thank you so much. Shahzad हमारे साथ unfortunately आज नहीं है, but he will be back tomorrow. And Saad, why don't you go on and introduce our panelists for today? Well, absolutely. Thank you for giving me the honors. This is Saad Khalid filling in for Shahzad Bhai, and I'm sure you're going to be missing him. But before we move ahead, obviously we have to introduce our amazing panelists with us. They've won the beautiful star on their chest, and they've made sure that they make us proud always, Mesha ki tarah, and they've represented Pakistan and done so. They've won so many matches for us, all of them. So we'll begin with Azhar Bhai. कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? आप कैसे हैं? And then we also have Imad Bhai with us, Imad Wasim Sahab, and then Suhail Tanveer on my left. So क्या हाल चाल है आपके? कैसे हैं आप? ठीक हैं? Welcome to the show. Right, now I think first of all, before we move any further, let's go on to the points table. अगर हमारे सामने points table आ जाए तो we can see कि कौन सी teams कहाँ पे place होंगी. And okay, before we come to the points table, let's basically talk about आज के जो 3 matches होंगे. अब जो पहला match वो already हो चुका है between Australia and Zimbabwe. I think ये दोनों teams के लिए काफ़ी बड़ा और पहला real test था because it was the first time these two nations were going up against full member teams. और आगे हमारे पास points table आ गया है. We can see Group A में India is right at the top after beating Namibia yesterday with 4 points. Pakistan is down there with a bit of a lower net run rate with 4 points as well. फिर Netherlands, USA and Namibia. अब Group B की बात करें तो Sri Lanka is sitting pretty at the top with 2 wins and with 4 points. उसके बाद Zimbabwe, of course, जिन्होंने आज मैच जीता है against Australia with 4 points. And then we have Australia, Ireland and Oman. It's pretty exciting. Group C. Honestly, it was supposed to be Group D in the start, जो कि हमें लग रहा था कि it would be very interesting. But then again, after the match that we had today, like the Group B actually, I'm going to talk about, it's getting very exciting, obviously. Yeah, definitely it is. तो आज let's not wait any longer. अब हम चलते हैं और अपने actually before we go on to do that, we've got Group C right here. Why don't you go on and so basically, talk a little bit about when we started with Group D, I mean Group C, obviously we can see the West Indies obviously is taking the lead, and Italy had a great win against Nepal as well. Yeah, England, that's something which is very shocking for me as well, because they were supposed to be a team which would come out and shine. Then if we talk about Group D, इस पे हम काफ़ी बात भी कर चुके हैं, काफ़ी बात हो भी चुकी है शो पे ऊपर. तो there were 3 teams which we thought के बहुत ही एक कांटेदार मुकाबला होगा. Afghanistan obviously, and they're out now, and yeah. But then again, I want to talk about Group B more, to be honest. I mean, it's getting really difficult for Australia now. Yes, definitely. Let's go. आज का जो पहला मैच था उसी के बारे में हम आज बात करेंगे मज़ीद. तो सबसे पहले, of course, let's talk about how it's such a great day for Zimbabwe cricket and for, of course, for the Zimbabwe cricket team. उन्होंने expectations तो exceed की हैं, but I don't think this is something alien to them, क्योंकि अगर हम याद रखें कि 2007 में भी Zimbabwe की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था. The only other time they played in an ICC T20 World Cup, and usme bhi Australia had a very strong team. They had the likes of Ricky Ponting, Adam Gilchrist, Matthew Hayden and Brett Lee, और फिर भी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराया था. And just moving ahead now, सबसे पहले तो सुहेल भाई मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि काफ़ी ज़्यादा सवालात उठ रहे थे ऑस्ट्रेलिया की टीम पे जब वो before they were coming in to begin their World Cup campaign, कि उनके जो की experienced quality bowlers हैं, Mitchell Starc हो गए, Pat Cummins हो गए, Josh Hazlewood हो गए, they would be missing from their squad. अब उनके कप्तान Mitch Marsh, the power hitter, is also not there. तो I think आज उन सवालों का थोड़ा सा हमें जवाब मिल गया है. Obviously जब आपकी core team की जो होती है वही when you lose it, तो फिर यही होता है जो आज का रिजल्ट हमें it shows it कि Mitchell Starc, obviously he's retired from T20, and then Hazlewood ki absence and Cummins ki absence, and then they
مین اسٹرائکر جو کیپٹن ہے مچ مارش, لوزنگ ہم obviously cost them a lot. اور اس کے رزلٹ میں نے آپ کو یاد ہوگا شو پہ بات بھی کی تھی کہ آسٹریلین بالنگ لائن اپ کو اتنی امپریسو لگ نہیں رہی ان کی ایبسنس میں, بٹ دے بیٹنگ ہیڈ دیٹ ڈیپتھ. لیکن آج وہ مچ مارش کی ایبسنس کی وجہ سے اور اوپر سے جو پچ کی سلونیس تھی اس نے بھی ان کے لیے کافی رول پلے کیا کہ ان کی جو نارملی آزی بیٹرز آپ کو پتہ ہے آسٹریلین پچز پہ دے پلے فلوئنٹلی, بلے پہ آتا ہے بال وہاں پہ. تو یہاں پہ آج کا جو پچ تھا اٹ واز کوائٹ سلو. اگر آپ زمبابوے کی بھی بیٹنگ دیکھیں گے تو دے اونلی لاسٹ 2 وکٹس بٹ دے مینیج ٹو اسکور اونلی 170, جو کہ شروع میں لگ رہا تھا کہ شاید اتنا کمپریہنسو ٹوٹل نہیں ہے, بلو پار لگ رہا تھا. بٹ آئی تھنک دا وے دے بولڈ اسپیشلی دے فاسٹ بولنگ دونوں, مظہر ربانی کو جتنا بھی کریڈٹ دیں آئی تھنک اٹس ہی از بین ٹرومینڈس ان دس ٹورنامنٹ. پچھلے والے میچ میں بھی آپ نے دیکھا کہ دا وے دے یوزنگ دا نیو بال اور جس طریقے سے پچ کو یوز کر رہے ہیں. آج بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ان ٹو دا پچ, حالانکہ آزی بیٹرز نون ٹو پلے گڈ پل شاٹس, باؤنس پہ وہ اتنا اسٹرگل نہیں کرتے, بٹ اگینسٹ مظہر ربانی دے لک اسٹرگلنگ. اور شروع میں جب آپ پاول پہ میں 4 وکٹیں کھو دیتے ہیں تو دیٹس واٹ ہیپنس. اچھا, مظہر ربانی کی بات کرتے چلیں تو ان دا پریویس میچ وی سو دیٹ ہی آلسو ٹک اے لاٹ آف وکٹس, اور تب پچ لگ رہا تھا کہ پچ ان کو فیور کر رہا ہے, اس لیے ان کے باؤنسرز, ان کے لمبے بولرز ہیں, باؤنسرز کام کر گئے ہیں. تو سوال یہ اٹھ رہا تھا کہ کیا وہ آج کے میچ میں اس طرح ورائٹی لا سکیں گے, بٹ آئی تھنک ہی showed that really well with his line and length today as well. Look, مظہر ربانی always جب سے وہ کھیل رہا ہے پاور پلے میں وکٹس لیتا ہے. آپ ان کے اسٹیٹس اٹھا کے دیکھ لیں, ایون پی ایس ایل میں بھی جب وہ کھیلا تھا آئی تھنک سہیل بھائی تھے اس ٹیم میں, مظہر ربانی اور سہیل بھائی اٹیک کرتے تھے اور اوپر سے وکٹس لیتے تھے. تو مظہر ربانی ہمیشہ سے ڈینجر ویپن ہے زمبابوے کے لیے, کیونکہ ایک تو ہائٹ ہے لیکن اس کا جو لینتھ ہے اور اس کے پاس جو پیس ہے وہ 145 پلس نہیں ہے, لیکن جو اس کے پاس لینتھ ہے اور جو ویریشن ہے اس کی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. آئی تھنک یارکرز میں تھوڑا سا کام کرنا ہوگا اس کو, یارکرز وہ اتنے اچھے نہیں مارتا, لیکن جو لینتھ بال ہارڈ لینتھ جیسے ہمارے محمد عرفان کرتے تھے, ہارڈ لینتھ پہ ادھر باؤنس ملتا ہے تو بہت ڈیفیکلٹ ہے. حالانکہ آسٹریلینس باؤنس کو اچھا کھیلتے ہیں, لیکن سہیل بھائی نے بڑا اچھا سم اپ کیا. اگر آپ کی بالنگ اچھی نہیں ہوگی اور آپ 170 کروا دیں گے اس وکٹ میں تو بہت ڈیفیکلٹ ہے. اب سکندر رضا نے 2 اوور نہیں کیے ادھر. I think the pitch was also acting a bit lazy as well, to be honest. اور وہ conditions کے اوپر بھی تھوڑا کولمبو ہو گیا, سری لنکا ہو گیا, یہ ہم آف دا ریکارڈ بھی یہ بات کر رہے تھے کہ اب اس کے کچھ دن رہ گئے 170 180 والے, اس کے بعد وہ نیچے آنا شروع ہو جائے گا. جیسے ہی دھوپ پڑے گی سلو ہونا شروع ہو جائے گی, وکٹ کنڈیشن ڈفرینٹ ہوگی. تو آسٹریلیا از ان ڈیپ ٹربل, ان کو سری لنکا سے میچ کھیلنا ہے اور پھر کولمبو میں میچ ہے. So I would fancy Sri Lanka to win the game. That is also going to be a very interesting match, to be honest, considering Sri Lanka is playing at home. At their home conditions, yeah, definitely. But it's a must win for Australia if they want to keep their hopes alive of going into the Super 8s. اچھا اظہر بھائی, اب کہا جا رہا تھا کہ اگر آسٹریلیا کی آن دی سلو سرفیسز ان کی جو بیٹنگ ہے وہ ایکسپوز ہو سکتی ہے بیکاز آف دا لیک آف اسپنرز ان دا زمبابوے ٹیم, لیکن آج انہوں نے اپنے ایک پیسر کو نکال کے کریمر کو ڈال دیا, اینڈ دیٹ سیم ٹو ورک آؤٹ پریٹی ویل فار دیم. آئی تھنک اسپن کے ساتھ ساتھ آئی تھنک جتنے بھی فاسٹ بولرز نے اپنی ویریشن کو یوز کیا ہے, لینتھس کو یوز کیا ہے. مظہر ربانی کی مثال جس طرح عماد کہہ رہے تھے, سہیل بھائی کہہ رہے تھے کہ اس کی ہائٹ کا ایڈوانٹیج اس کو ہے, پھر اس کے کٹرز جو ہیں, اور اس کے بعد جب وہ ایک 1 آؤٹ یارکر جب کرتا ہے, کیونکہ ہائٹ کی وجہ سے اگر وہ یارکر جب ایگزیکیوٹ کرتا ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. بٹ آئی تھنک کہ آسٹریلیا کی جو پلاننگ تھی آئی تھنک وہ تھوڑی سی آج آف اس لیے رہی کہ زمبابوے واز آلویز تھنکنگ بیٹنگ فرسٹ. ان کو اپنی لمیٹیشن کا پتہ تھا کہ ہم شاید چیز اس طرح نہ کر پائیں, کنڈیشنز کا ان کو بہتر ریڈ کی. انہوں نے کہا کہ پلے پچ سلو ہو جائے گا, اور ہم نے پوسٹ میچ میں دیکھا سکندر رضا نے جس طرح ایکسپلین کیا پورا میچ کہ وہ 190 تک بھی سوچ رہے تھے ایک ٹائم پہ, لیکن انہوں نے کہا کہ اگر ہم 190 کرنے گئے تو ہم 140 پہ نہ آؤٹ ہو جائیں. تو دے پلیڈ انٹو لمیٹیشنز کے حساب سے کھیلے وہ. انہوں نے ایک پارس کو سیٹ کیا اور پھر پریشرائز کیا آسٹریلین بیٹنگ کو اپنی بالنگ سے اور اپنی فیلڈنگ سے. آئی تھنک اٹ واز ویل پلانڈ گیم. زمبابوے کی طرف سے پلاننگ بہت زبردست تھی. آسٹریلیا آئی تھنک انیشیٹو انہوں نے کھو دیا جب انہوں نے ٹاس جیت کے پہلے زمبابوے کو بیٹنگ. ہاں, یہ ہم دیکھ بھی سکتے ہیں ویژولز فرام دا گیم. جب آسٹریلیا چیز کرنے آیا تھا تو ان کی وکٹس بہت ہی جلدی گر گئی تھی. زمبابوے کی جیت میں فیلڈنگ کا بہت میں کہنے والا تھا بالکل, دیٹ واز سمتھنگ فیلڈنگ آؤٹ اسٹینڈنگ. They saved a lot of runs and کیچز انہوں نے کتنے آؤٹ اسٹینڈنگ پکڑے ہیں, اور کوئی انہوں نے 2 باؤنڈریز بچائی ہیں. وہ اگر چھکا بھی میرے ہاتھ سے اس نے, also the catch that he took at the end, that was an amazing catch. brilliant by Zimbabwe. اگر اس طرح یہ کھیلتے رہے
very dangerous side in these conditions. I actually want to ask you कि अब हम सिकंदर रज़ा उनकी कैप्टन की बात करते हैं तो उनकी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है over the last 5 years in his batting and his bowling. तो अब being the captain of the Zimbabwe team, तो आपको क्या लगता है उन्होंने किस तरह his own confidence किस तरह ट्रांसफ़र किया into this team कि हम उनको इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए देख रहे हैं? जो सिकंदर रज़ा ने जिम्बाब्वे के लिए किया है, I think hats off to him. Yeah. जिस तरह उसने जिम्बाब्वे क्रिकेट को वापस रिवाइव की है, क्योंकि एक टाइम पे जिम्बाब्वे क्रिकेट बहुत नीचे चली गई थी. सिकंदर रज़ा ने जिस तरह बैटिंग, बॉलिंग एंड देन नाउ लीडरशिप क्वालिटीज़, आई थिंक क्रेडिट गोज टू सिकंदर रज़ा. जिस तरह उसने जिम्बाब्वे क्रिकेट को उठाया है वर्ल्ड क्रिकेट में, और उसकी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था पहले मैच के बाद, तो उससे सवाल ये हुआ था कि आप क्या समझते हैं कि आपकी टीम जो है अपसेट करेगी, तो उसने कहा अपसेट तो हम नहीं सोच रहे, हम तो फाइनल्स तक जाने का सोच रहे हैं. अगर आपको ऐसा लगता है तो आपका ओपिनियन है, लेकिन हम लोग हम वी आर द सेकंड बेस्ट टीम इन अफ्रीका और हम कम्पीट साउथ अफ्रीका से करते हैं. सो आई थिंक आज उसने शो किया ऑस्ट्रेलिया को हराना, नंबर 2 इन द वर्ल्ड. I mean that's what you call self-belief and that's what every team has to have. अब हम चलते हैं एक छोटे से वक्फे की तरफ, but when we come back we've still got lots more to talk about regarding this match. So make sure you keep watching The Dugout. Welcome. We are back on The Dugout. हम आज अभी वक्फे पे जाने से पहले बात कर रहे थे of course जो amazing win हुई है Zimbabwe की over Australia, उसके बारे में. Now let's move towards a little bit about Zimbabwe's batting. अगर हम बात करें सुहेल भाई, तो उनके जो openers थे उन्होंने पावर प्ले में बड़ी अच्छी तरीके से I think steady क्रिकेट उन्होंने खेली थी. They got them the important runs that they needed on the scoreboard. तो उनकी जो दोनों right hand left hand combo थी, how well do you think that worked? And then the running between the wickets was also I think pretty the good. most impressive thing कि उन्होंने कंडीशन को रीड बड़ा अच्छा किया. जैसे इमाद ने भी कहा कि सिकंदर रज़ा ने आके जैसे पूरा अपने उसको गेम प्लान को डिस्क्राइब किया कि हम क्या सोच रहे थे. ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी गेम में जाके आप हमेशा एक टीम प्लान ए बनाती है, बट व्हेन यू गो टू द ग्राउंड आप असेस करते हैं कंडीशन को, पिच को, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि जो आप प्लान करके जाते हो या एक्सपेक्ट कर रहे हो तो पिच को जो वैसे प्ले करेगी वैसे बिहेव नहीं करती, देन यू क्विकली मूव एंड स्विच टू प्लान बी. आई थिंक वो हमें आज नजर आया. नॉर्मली T20 में आप देखते हैं कि जब व्हेन यू हैव विकेट्स इन हैंड तो टीम्स जाती हैं कि वो ओवर अटैक करने जाती हैं कि हम 200 पोस्ट करने जाएं, बट आई थिंक दे डिड वेरी स्मार्टली. दे असेस द कंडीशन रियली वेल कि यहाँ पे कितना इनफ रन्स होंगे. लाजमी नहीं है कि यस मॉडर्न डे क्रिकेट वी टॉक अबाउट 180 200 के स्लो विकेट भी थी. हाँ, तो उन्होंने पिच को देख के उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि ये पार स्कोर होना है, हमारे बॉलिंग रिसोर्सेज के हिसाब से इतना इनफ रन्स होंगे. और आई थिंक के एंड पे जो कि आके सिकंदर रज़ा ने एक्सेलरेट किया है वो 34 रन्स, अगर वो ना होते तो शायद दे कुड हैव फिनिश ऑन 150 155. तो आई थिंक वो बड़ा एक की रोल था. सो आई थिंक मुझे प्लानिंग बड़ी अच्छी लगी उन्होंने, और मैं हमेशा इसी चीज़ पे बात करता हूँ कि आपको जो कंडीशन है उनको असेस करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है टू विन एनी गेम इन अगेंस्ट एनी ऑपोजिशन. जनरली भी मैं ये थोड़ा सा इस पे बात करना चाहूँगा कि जिम्बाब्वे हैज़ बीन एक्टिंग, दे आर पुटिंग अ वेरी मैच्योर एक्ट रिसेंटली, इवन इन द लास्ट T20 वर्ल्ड कप. You cannot write them off now. Zimbabwe एक किसी भी ग्रुप में हो that they turn out to be as a threat. सर भाई इसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालेगा कि आपको थोड़ा सा लाइक पुरानी जिम्बाब्वे वो नहीं आपको फिर से नज़र आ रही कि whenever they would come and they would actually make sure that they're here to win, right? तो वो एक वही पुराना जो उनका एक स्टाइल था खेलने का, मेच्योर एक्ट, they played well in all 3 departments yesterday. नहीं बिल्कुल, आई थिंक इसमें लीडरशिप बड़ी काउंट करती है और कंसिस्टेंटली वो क्रिकेट खेल रहे हैं, कंसिस्टेंटली अब परफॉर्मेंस थोड़ी सी दे भी रहे हैं और इनके पास रिसोर्सेज भी हैं. अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1-2 प्लेयर्स पे वो खेल रहे हैं. दे हैव बॉलर्स, दे हैव बैटर्स हु कैन पुट रन्स ऑन द बोर्ड. आई थिंक कि सबसे अच्छी चीज़ है कि टीम को अपनी स्ट्रेंथ का पता हो और उसको यूटिलाइज़ करना जानते हो. तो वो टीम ऐसी ज़रूर है, और स्पेशली अंडर द लीडरशिप ऑफ सिकंदर रज़ा, पूरे अराउंड द वर्ल्ड वो लीग्स खेलते हैं. उनको हर प्लेयर का पता भी है कि किस प्लेयर को हमने कहाँ पे अटैक करना है, किस तरीके से हमने दूसरी टीम को बांधना है. आई थिंक कि इस वजह से बहुत सारी चीज़ें उनके लिए पॉजिटिव जा रही हैं. और कंडीशन भी जब ऐसी होती है तो जो टीम थोड़ी सी स्किल में शायद थोड़ा सा नीचे हो वो थोड़ा सा आपके पास आ जाती है, क्योंकि पिच जो होता है वो बहुत हाई स्कोरिंग नहीं होता, तो वहाँ पर ऐसी टीमें ज़्यादा तंग करती हैं. आई थिंक जहाँ पे हाई स्कोरिंग ज़्यादा गेम होगा वहाँ पे ये टीम आपको थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रगल करती नजर आएगी. इमाद, जो इनके ओपनर्स हैं उन्होंने 3 सेंचुरी पार्टनरशिप्स की हुई हैं T20 इंटरनेशनल्स, एंड हाउ डू यू थिंक उन्होंने कितने अच्छी तरीके से पावर प्ले को यूटिलाइज किया? लोग मैच्योरिटी से खेलें, विकेट्स इन हैंड रखी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी.
مجھے ایسا لگا کہ انہوں نے جو گیم پلان کیا ہوا تھا سہیل بھائی نے بہت اعلیٰ سم اپ کیا ہے, تو اس سے وہ بے شک وہ بہت زیادہ ابو پار نہیں گئے لیکن پار سکور پہ گئے, کیونکہ انہیں اتنا آئیڈیا تھا کولمبو میں سکندر کافی کرکٹ بھی کھیلا ہے, LPL بھی کھیلا ہے, تو اتنا آئیڈیا ہوتا ہے کہ سیکنڈ اننگز میں تھوڑا سا جو ہے آپ کو مشکلات آتی ہیں رن چیز کرنے میں اسپیشلی, اور اگر آپ کے اسپنرز اچھے ہوں. اور مجھے لگتا ہے کہ بہت کلیور کرکٹ کھیلی ہے, یہ ٹیکٹیکل بیٹل جیت گئے ہیں آج آسٹریلیا سے. سو آئی تھنک موونگ فارورڈ اگر کوئی ٹیم بیٹ فرسٹ کرے ڈے ٹائم پہ تو بہت اچھا ڈیسیجن ہو سکتا ہے. اسی میچ کے حوالے سے اگر بات کریں تو زمبابوے دے ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی ریئلی ریئلی امیزنگ ٹوڈے, بٹ دین اگین ہاؤ از اٹ لکنگ فار آسٹریلیا ناؤ عماد بھائی؟ لوک آسٹریلیا از ان ڈیپ ٹربل. آئی تھنک سری لنکا کو ہرانا سری لنکا میں اٹس اے ٹف کال انلیس ہسرنگا انفٹ ہو یا تھکشانا انفٹ ہو, کیونکہ اسپنرز ان کے بہت تگڑے. آئی اسٹل بلیو کہ اسٹوئنس کو تھوڑا اوپر آنا چاہیے, کیونکہ وہ آپ کو اگر اسٹیٹس پتہ ہوں تو ہسرنگا کے خلاف اس کے بہت اعلیٰ اسٹیٹس ہیں. اس نے ایک ورلڈ کپ میں بیک فٹ پہ جا کے اس کو 3-4 چھکے بھی مارے تھے ایک میچ میں. سو آئی تھنک اسٹوئنس, میکسویل, رینشو یہ ایسے پلیئر ہیں جن کو زیادہ سے زیادہ بالنگ زیادہ سے زیادہ اوپر آ کے بالز ملنی چاہیے. ٹریوس ہیڈ ون آف دا بیسٹ پلیئر ان دا ورلڈ. دیکھیں کوئی بھی ٹیم ہو دنیا کی, اگر آپ 2-3 وکٹ 4 وکٹ پاور پلے میں یا 6-7 اوور میں آپ لوز کریں گے نا, تو یہی سچویشن ہوگی کہ آپ بیسٹ ان دا ورلڈ بھی ہونا. جیسے میکسویل ہے, جب تک وہ کھڑا رہتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ہی پاسبل ہے. سو اس طرح کے پلیئرس پہ صرف ان پہ ڈپینڈ نہیں کرنا چاہیے ان کنڈیشن میں. ان کنڈیشن میں آپ کو اوپر سے پارٹنرشپ لگانی پڑے گی, پاور پلے کو یوٹیلائز کرنا پڑے گا ایٹ دا سیم ٹائم, کیونکہ کنڈیشنز تھوڑی ڈفرینٹ ہے, تو آپ کو وکٹس ان ہینڈ رکھنا بہت ضروری ہے. آپ 10 رن 12 رن 15 رن کم بھی کریں لیکن پاور پلے میں وکٹس ان ہینڈ رکھیں جس تاکہ طرح آپ زمبابوے کھیلا کانسٹنٹ پریشر ہے. میکسویل کی عماد بھائی نے بات کی, ہی سارٹ آف سیمڈ بٹ انکمفرٹیبل. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ سری لنکا میں اٹ واز کوائٹ ہیومڈ ٹوڈے, اور میکسویل وازنٹ لائک ہی وازنٹ لوکنگ کہ ہی از ان اے گریٹ نیک. سہیل بھائی آپ کیا لگتا ہے؟ آئی تھنک کہ بال لو بہت زیادہ رہ رہا تھا. آپ اگر 2-3 ڈسمسل ان کے دیکھیں جو اسپنرز پہ اسپیشلی ہوئے ہیں, وہ بیکاز کہ بال بہت لو رہا اور دے ٹرائی ٹو ہٹ اٹ, اور وہ بیٹ کے ٹو اینڈ پہ لگا. تو آئی تھنک کہ یس کریڈٹ ٹو زمبابوے, بٹ کنڈیشن نے بھی بڑا سپورٹ کیا زمبابوے کو. آئی اسٹل بلیو آسٹریلیا از اے اسٹرانگ سائڈ, اور ہم نے دیکھا ہے اوور دا ایئرس کہ جب بھی وہ انڈر دا پمپ ہوتے ہیں تو دے آلویز کم بیک ویری اسٹرانگ ریگارڈلیس جیسی بھی ٹیم ہو. یس آن پیپر دس ٹیم از ناٹ لکنگ ویری اسٹرانگ, بٹ ہسٹری نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ جب بھی آسٹریلینز آتے ہیں انڈر دا پمپ جب بھی ہوتے ہیں تو دے آلویز کم اپ ویری اسٹرانگ. اب بیٹنگ میں ان کے پاس بہت زیادہ پاور ہے, اور آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو رول دیم آؤٹ کہ وہ سری لنکا, یس سری لنکا پلئنگ ایٹ دیئر ہوم, بٹ آسٹریلینز کی جو مینٹیلٹی ہے نا, دیٹس دا تھنگ کہ جو باقی کسی ٹیم میں نے نہیں دیکھی. دنیا کی کسی ٹیم میں وہ مینٹیلٹی, وہ مینٹل ٹفنس, وہ اسٹرینتھ نہیں ہے جو آزیز کے پاس ہے. اور وہی ان کو اوور دا ایئرز آپ نے دیکھا ہے کہ پوری دنیا میں وہ کسی وہ کنڈیشنل نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جیسے انگلینڈ کی ٹیم کی بات کی جاتی ہے تو وہ اپنی کنڈیشن میں بڑے تگڑے ہیں, بٹ وین دے گو ٹو پلے آسٹریلیا یا کہیں اور آتے ہیں. بٹ آسٹریلیا کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے, وہ کیریبین میں بھی کھیلتے ہیں تو دے پلے سپربلی ویل. سو میں اس کو دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ دے ول باؤنس بیک, اور آپ ان کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے. اینڈ دے بیٹنگ آج تو پچ, کیونکہ میں نے کہا نا کہ بہت زیادہ سلو تھی اور لو تھی. ایک ہوتی ہے سلو, یہ لو بھی تھی, اونچا نہیں آ رہا تھا, جس کی وجہ سے انہوں نے اسٹرگل کیا. ورنہ میکسویل اور جو ان کے رینشا ہیں وہ جس طریقے کی انہوں نے اننگ کھیلی, ایک ٹائم پہ لگ رہا تھا 6 اووروں میں 60-65 رہ گئے تھے, اینڈ دے ہیڈ 5 وکٹ. وہ ایک میٹر آف وہی تھا کہ کسی کی اچھی اننگ لگ جاتی, بٹ وہ نہیں ہوا. سو آئی تھنک کہ آبویسلی ورینگ سائن تو ہے کہ آپ ہار جاتے ہیں, اور اس اسٹیج پہ ایک چھوٹی ٹیم کے جب آپ اگینسٹ میچ ہارتے ہو تو آپ ڈیپ ٹربل میں تو جاتے ہو, بٹ دے ہیو آل دا ابیلٹیز ٹو کم بیک, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ رول ان کی مینٹل ٹفنس کا. ہم اسی کو تھوڑا سا کنٹینیو کروں گا. ہم 2021 کا ورلڈ کپ کھیل رہے تھے جب ہم نے 5 کے 5 گیمز جیتے, سیمی فائنل تھا, تو ہیڈن ہمارے ساتھ تھے ایز اے بیٹنگ کنسلٹنٹ. آئی تھنک انہوں نے میٹنگ میں ایک بات کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ آپ فیوریٹس تو ہیں لیکن ڈونٹ بی سرپرائز, دے کم آؤٹ فائرنگ, یو نیور نو اٹ آسٹریلینز, دے ول ناٹ گیو اپ. اور اس ٹائم پہ ہمیں لگ رہا تھا کہ ہم ہرا دیں گے ان کو, لیکن جس طرح وہ آئے, وہی بات ہے سہیل بھائی والی بات, بیکس اگین دا وال,
they are very dangerous. ये तो हमने देखा है. That's They why always they're- come back. Like, That's why they are one of the favorites, you know, the top favorites in every ICC tournament that they come into play. आप कुछ बोलना चाह रहे थे अब? नहीं मैं बिल्कुल मैं ये कह रहा था और मैं बात भाई की बात पे मैं सेकंड करना चाहूँगा. ऑस्ट्रेलिया टेंड टू ऑलवेज कम बैक. लाइक आपने कितनी दफ़ा देखा है कि दे मतलब वो उनका टूर्नामेंट ठीक है उस तरह एक्सपेक्टेड नहीं जा रहा होता, बट दे ऑलवेज कम बैक एंड देन क्वालिफाई एज वेल. इवन विद श्रीलंका, लाइक इफ दे कैन प्ले, जैसे सोहेल भाई कह रहे थे, द कॉन्फिडेंस is the key. Like I'm sure they're gonna bounce back. That match is going to be very interesting. But the one thing I would say कि इनकी bowling, अजहर भाई आप सेकंड करेंगे, उनकी bowling में ना, क्योंकि जब भी हमने कमबैक्स देखे हैं कुछ देखे, स्टार्क, हेजलवुड, कमिंस, वो बहुत एक्सपीरियंस है. इनकी बॉलिंग थोड़ी सी इनएक्सपीरियंस है. जैम्पा है जो आपको लगता है एक्सपीरियंस है, बस बॉलिंग का है. अगर वो पहले हो सकता है पहले वो बैटिंग करके रन ही इतने बना दें कि फिर बॉलिंग को वो थोड़ी नहीं, वो बहुत ज़्यादा बॉलिंग में तो बहुत ज़्यादा मतलब कुछ भी नहीं है जिसके बारे में टॉक अबाउट अदर देन जंपा. देयर इज नो स्टैंड आउट परफॉर्मर जिसके बारे में बात की जाए, कोई रिनोन बॉलर हो और जिसने कोई प्रूवन हो ओवर द इयर्स. तो अगर उन्होंने जीतना है तो अपनी बैटिंग के ऊपर जीतेंगे. नहीं, आज भी हमने देखा था कि एडम जाम्पा परफॉर्म्ड वेल इन द लास्ट मैच फॉर देम, टुक 4 विकेट्स. आज वो एक भी विकेट ना ले सके. आज जनरली भी देखा है, हालांकि स्पिन भी हो रहा था, सब कुछ था, लेकिन स्पिनर्स ने आउट उस तरह नहीं किए. ऑल्दो स्पिन इतना ज़्यादा नहीं हो रहा था. क्रीमर का एंड पे जाके शायद स्पिन होना शुरू हुआ था. जंपा वैसे भी बहुत टर्न नहीं करते बॉल को, कीप्स इट स्टंप टू स्टंप. बट अगेन वही बात है कि श्रीलंका होम कंडीशन है एडवांटेज, लेकिन श्रीलंका की भी अभी वो टीम नहीं है कि आप कह सकें कि इनके ये बैटर्स हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बड़े इनफॉर्म हैं, हेयर एंड देयर परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, लेकिन कंसिस्टेंट परफॉर्मर कोई भी उनकी बैटिंग में नहीं दे रहा. तो आई थिंक श्रीलंका के ऊपर भी उतना ही प्रेशर होगा, क्योंकि दे आर प्लेइंग एट देयर होम अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. दे मस्ट विन गेम है. यू नो अच्छा गेम होगा. अगेन वही बात है कि ऑस्ट्रेलिया अगर अपनी उस फायरी उस पे आ गया तो यू नो इट डजंट मैटर कि उनकी टीम कैसी है, द मेंटालिटी से ही वो मैच जीत जाते हैं. तो श्रीलंका के माइंड में भी ये चीज़ होगी ना, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं यार कि वो मेंटली बड़े स्ट्रांग हैं और जब भी अंडर द पंप होते हैं तो बहुत ज़्यादा वो और चढ़ के आते हैं. तो श्रीलंकन के माइंड में भी ये चीज़ होगी कि यार वो तो कह रहे होंगे यार कि ये ना हारते तो बेहतर था, थोड़े ईजी आते हैं. तो अब उनके लिए भी मुश्किल हो गया है. श्रीलंका की टीम ऑब्वियसली मैंने उस दिन बात की थी कि अब उनमें वो संगाकारा, जयवर्धना वो नहीं है जो लंबी इनिंग खेलने वाले थे, बट स्टिल दे आर अ गुड टीम जिसमें छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन होती हैं. उनमें कोई वो नहीं होगा कि अकेला 80-90 करके मैच जितवाने वाला नहीं है, बट स्टिल दे कंट्रीब्यूट, दे प्ले एज अ टीम. तो इट्स गोइंग टू बी अ गुड गेम. तो मुझे लगता है कि ये मेंटल टफनेस वर्सेस श्रीलंका, ऑल द होम एडवांटेज और वो जो अपने, तो एक बड़ा अच्छा मैच होने जा रहा है. वैसे एक इमेजिनेटिव मोड में अगर मैं वैसे सोच रहा था कि अगर यही मैच अगर जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया का अगर इंडिया में हुआ होता तो व्हाट डू यू थिंक कि रिजल्ट शायद थोड़ा डिफरेंट होता. हाँ वैसी बात है, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में अगर मैच खेलें तो बिग बैच खेलते हैं वो सारे, उनको बाउंस का आइडिया है. आप लोगों ने बिल्कुल सही बात की, लेकिन आप रन रेट देखें 3.125 श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया 1.1. देयर इज़ अ मैसिव डिफरेंस. उनको बहुत बड़ी जीत चाहिए श्रीलंका को वो करने के लिए. जिम्बाब्वे ऑलमोस्ट 2 का रन रेट है. ये बहुत ज़्यादा फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है ऑस्ट्रेलिया का क्वालिफाई करने के लिए. हाँ उनका आयरलैंड से मैच है, उनको भी बड़े मार्जिन से हराना पड़ेगा. सो ऑस्ट्रेलिया के लिए मुझे ऐसे लगता है कि बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि श्रीलंका को बहुत गंदी गेम खेलनी पड़ेगी बहुत बड़े मार्जिन से हारने के लिए, और फिर आयरलैंड को डेफिनेटली आयरलैंड से हारना पड़ेगा, एक बहुत क्लोज मार्जिन से जीतना पड़ेगा. सो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बहुत प्रेशर आ गया. अब उनके लिए कुदरत का निज़ाम ही उनको बचा सकता है. ऑस्ट्रेलिया कुदरत का निज़ाम नहीं होता. ऑस्ट्रेलिया अपने खुद ही अपनी एबिलिटी से क्वालिफाई करती है. हमारी किस्मत में ही बात आती है. हाँ, सिर्फ हमारी किस्मत में ही बात आती है. But anyway, now we're going to go towards a short little break, and when we come back, we've got more matches to talk about. So make sure you stay tuned to the dugout. With the Zimbabwe और ऑस्ट्रेलिया के मैच के बारे में, and then let's move on from that. Now we had some really exciting matches. Yeah, we did. अब थोड़ा सा कल के मैचेस की बात करते हैं. नेपाल और इटली दोनों इमर्जिंग टीम्स, और नेपाल को जैसे हमने देखा है बहुत ही तगड़ी टीम लग रही थी. यू नो दे वेंट सो क्लोज विद इंग्लैंड, और जस्ट ओवरऑल बिकॉज ऑफ द नेपाल प्रीमियर लीग एंड जस्ट हाउ दे हैव बीन परफॉर्मिंग, ऐसा लग रहा था कि वो अपसेट भी क्रिएट कर सकती है. बट आई गेस इटली हैड डिफरेंट आंसर्स फॉर एवरीबॉडी आउट देयर, बिकॉज इटली बीट देम बाय 10 विकेट्स. एन एब्सोल्युटली फिनोमिनल परफॉर्मेंस राइट देयर बाय इटली. Pretty dominant by them. वेरी डोमिनेंट. और पता है पहला जो यू नो इटली का ऑफ कोर्स डेब्यू वर्ल्ड कप है और उनकी पहली जीत है इन अ वर्ल्ड कप. पहला मैच वो अपना स्कॉटलैंड से हार गए थे. सो अ वेरी गुड
turn it around for them. We can see कि जब नेपाल बैटिंग करने आई थी तो Italy managed to get them all out at 123, with Arif Sheikh scoring 27, Rohit Paudel scoring 23 and Asif Sheikh at 20. और फिर इटली के जो एंथनी मॉस्का इटली के जो क्रिश्चियन आई एम नॉट रियली श्योर हाउ टू से हिज नेम, बट उन्होंने कलुगामगे उन्होंने 3 विकेट्स उठाए. एब्सोल्युटली ब्रिलियंट bowling performance from him and a brilliant bowling spell. He was the main game changer in that first innings. और फिर जब नेपाल बैटिंग करने आई थी उसमें they didn't really have any answer. जब इटली बैटिंग करने आई थी तो उन्होंने they lost no wickets. और जो दोनों भाई थे मॉस्का ब्रदर्स उन्होंने बहुत ही शानदार इनिंग्स खेली, 62 और 60 बनाए और इसी तरह वो मैच जीत गए. The Nepalese bowlers See, these had no matches answers for and these them. little performances, they lay a great significance for these. Yeah. For example, अब ये जहन में अब ये जो बाकी टीम्स हैं उनके थिंक टैंक में ये तो होगा डेफिनेटली, खास तौर पे इंग्लैंड के कि ये परफॉर्मेंसेज हैं, इटली कैन ऑन अ गिवन डे कैन परफॉर्म वेल, नेपाल कैन परफॉर्म वेल. इसके ऊपर सोहेल भाई थोड़ा रोशनी डालिए कि लाइक इंग्लैंड के बारे में अगर बात की जाए तो अभी इट्स लुकिंग लिटिल टफ फॉर देम एज वेल. इंग्लैंड का भी इशू उनकी बॉलिंग रही है. अभी खासकर अभी ये जो बॉलिंग लाइनअप है इसमें सिवाय आदिल रशीद के मुझे कोई ऐसा T20 का थ्रेटनिंग बॉलर नहीं लग रहा जिसके ऊपर आप यू कैन बैंक ऑन. हर टीम के पास अगर आप देखेंगे जिनकी सक्सेस रही है तो उनके पास 2 से 3 पक्के बॉलर होते हैं T20 के जो कि मोर ऑफन देन नॉट जो कि अच्छा डिलीवर करके देते हैं. तो इंग्लैंड का प्रॉब्लम उनकी बॉलिंग लाइनअप है. हमेशा वो सक्सेसफुल होते हैं बैटिंग को लेके, लेकिन ये जिन कंडीशन में हम लोग खेल रहे हैं ना, स्पेशली यहाँ पे श्रीलंका में, जैसे आज ऑस्ट्रेलिया का भी आपने देखा, यहाँ पे आप उस तरीके से हिटें नहीं मार सकते जैसे आप ऑस्ट्रेलिया में मार सकते हैं या आप इंग्लैंड में मार सकते हैं, क्योंकि वहाँ बाउंस अच्छा मिलता है, आप थ्रू दी लाइन शॉट्स मार सकते हैं. बट यहाँ पे वो स्लाइट बॉल जो है होल्ड करता है पिच में और वहीं पे आप जो है अपनी वो मिस कर देते हैं टाइमिंग. तो आई गेस के इंग्लैंड के लिए भी जैसे ऑस्ट्रेलिया के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है, इंग्लैंड के लिए भी मुश्किल होने जा रहा है. और ये मेरे ख्याल में क्रिकेट की खूबसूरती के लिए बड़ा अच्छा है जो इस वर्ल्ड कप को इसने बड़ा एक चार्म दिया हुआ है कि आप ये नहीं कह सकते यार कि कल फलां टीम का मैच है तो नहीं इसने तो जीतना ही जीतना है, इसने हारना है. सो आई थिंक कि ये एक एसोसिएट टीम्स ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट जितनी अच्छी परफॉर्मेंसेज पुट अप की हैं, आई थिंक ये इट्स वेरी प्लीजिंग टू सी, वेरी गुड फॉर वर्ल्ड क्रिकेट कि अब ये नहीं है यार कि आप यू कैन प्रेडिक्ट अर्ली कि यार इस टीम ने जीतना है. एंड देन नेपाल वर्सेस इटली की आई थिंक नेपाल के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है द वे दे प्लेड अगेंस्ट इंग्लैंड. तो उसके बाद और क्योंकि मैं खुद नेपाल में बहुत क्रिकेट खेला हूँ, मुझे पता है दे आर वेरी गुड टीम. तो अगेंस्ट इटली जो कि पहला वर्ल्ड कप अपना खेली है, येस दे हैव प्लेयर्स हु हैव प्लेड इन ऑस्ट्रेलिया या डिफरेंट कंट्रीज में क्रिकेट उन्होंने खेली हुई है, बट स्टिल दे आर अ न्यू टीम. और नेपाल एक इमर्ज करती हुई टीम है जिसको मेरे ख्याल में मैं तो कह रहा था कि आने वाली अफगानिस्तान होगी. तो उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है और क्रेडिट टू इटली द वे दे आउट क्लास देम. मतलब 10 विकेटों से जीतना, 12 ओवरों में रन चेज कर लेना, आई थिंक. तो आप इमाद आपको लगता है कि कंसिस्टेंसी की बात करें तो जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस इंग्लैंड के खिलाफ दी थी, दे weren't able to replicate that at all. तो जब इमर्जिंग नेशंस की बात करें तो उनमें क्या इज इट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सपीरियंस कि वो उस तरह कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर सकते? पॉसिबली आई थिंक हम तो मुझे तो बड़ा शॉकिंग ये चीज़ है कि अगर आप मैच से पहले कहीं 10 विकेटों से अगर इटली जीत जाएगा. हमारे तो दोनों की उन्होंने पूछा था कि कौन जीतेगा, हमने कहा क्वेश्चन ही नहीं, नेपाल. लेकिन जिस तरह इटली खेला है आई थिंक रिमार्केबल, ग्रेट अचीवमेंट. 10 विकेटों से जीतना वर्ल्ड कप का गेम, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट. और यूरोपियन टीम आई है और इस तरह एशियन टीम को कंडीशंस एशिया में और हराना बहुत बड़ी अचीवमेंट है. और गुड लक इटली के लिए. आगे टूर्नामेंट में हो सकता है कि वो अपसेट कर दें कोई. यू नेवर नो. अब ऐसे ही लगे. लेकिन आई जस्ट वांट टू अजहर भाई, मैं आपके तरफ आना चाहती हूँ. बहुत ही खूबसूरत इंस्पिरेशनल कहानी है उसी बॉलर की जिसका आप नाम ले रहे थे, क्रिश्चियन खलुगमाज. मैंने लिया स्टोरी वो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा मुझे मुश्किल हो रही थी, लेकिन जनरली वो उनकी जो रूट्स हैं श्रीलंकन हैं. उनके आइडल थे सनत जयसूर्या. जब उनकी फैमिली जा रही थी श्रीलंका से इटली तो वो काफ़ी ही वाज हार्ट ब्रोकन बिकॉज उनका जो पैशन है वो अपना एक पूरा करियर परसू करना चाहते थे क्रिकेट में. और अब वो ही वर्क्स इन अ पिज़्ज़ा प्लेस और सिर्फ संडेज़ को जाके वो ट्रेन करते हैं. और जब उन्हें पता चला था दैट दे गॉट सिलेक्टेड फॉर द वर्ल्ड कप तो उन्होंने एक पूरा महीना लगाया था श्रीलंका में प्रिपेयरिंग देयर. सो आई थिंक अब उनकी जो मेहनत है, उनका जो पैशन है, आई थिंक दैट्स रीपिंग बेनिफिट्स फॉर हिम. क्योंकि अभी उन्होंने कहा है कि
you know, after this World Cup, he hopes to, you know, pursue cricket full time. And do you think that, you know, through this win, it will really be able to open doors for him ahead? नहीं बिल्कुल ये देखें एक दफ़ा आप सामने आए परफॉर्म करें तो अब तो पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत सारे डोर्स हैं जहाँ पे आप जाके अपना पैशन है उसको परसू कर सकते हैं. तो आई थिंक कि होपफुली विद दिस परफॉर्मेंस इटली की क्रिकेट भी आगे बढ़ेगी, साथ साथ जो कुलगामा गए हैं हाँ, उनकी कुलगामा भी गए। क्रिकेट है, लीग्स के अंदर हो सकता है उनको कहीं ना कहीं ब्रेक थ्रू मिले, सो ही कैन परसू. क्योंकि कई जो लोग पैशन से खेलते हैं उनके लिए एज मैटर नहीं करती, उनके लिए जगह मैटर नहीं करती, दे ऑलवेज वांट टू परफॉर्म एंड ऑलवेज वांट टू एक्सेल इन देयर करियर. तो आई थिंक और आई होप कि ये आगे जाके अपना नाम क्रिकेट में बनाएंगे. आई नो इटली के पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी, इस वजह से सेटबैक जो सोहेल भाई कह रहे थे नेपाल के लिए ज़्यादा है कि नेपाल के पास अपॉर्चुनिटीज़ इटली से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इमर्जिंग एशिया कप होता है हर साल जहाँ पे नेपाल खेलती है, फिर वो ऑस्ट्रेलिया जाके भी खेलते हैं. तो आई थिंक कि दिस सरप्राइजिंग इसीलिए सबसे ज़्यादा था कि वो टीम भी अच्छी थी, अपॉर्चुनिटीज़ भी उनके पास ज़्यादा थी, लीग भी है उनकी, उसके बावजूद इटली का जीतना एक बहुत सरप्राइजिंग था हमारे जिस लिए, तरह हराया उन्होंने उनको, जिस तरीके से उन्होंने हराया. तो आई थिंक स्टिल आई फील कि नेपाल इज स्टिल एन इमर्जिंग टीम और स्टिल वो अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, बट इस रिजल्ट से थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट उनको ज़रूर हुई होगी. और जो जनरली मॉस्को वैसे का ये जैसे सोहेल भाई भी बता रहे थे कि ये वर्ल्ड क्रिकेट के लिए ऑब्वियसली इट्स अ गुड साइन. ऑब्वियसली नाउ अदर टीम्स आल्सो इन यूरोप दे वुड बी लुकिंग एट ओके दिस इज समथिंग लाइक क्रिकेट इज गेटिंग मोर एंड मोर कॉम्पिटिटिव व्हिच इज प्रोबेबली गुड. जैसे कि इटली का बता भी रहे थे कि लाइक 12 आउट ऑफ 15 ऑफ देयर प्लेयर्स they don't pursue cricket full time, like they're just part-time cricketers. Now, obviously this could be a career in Italy now, okay, let's go ahead and obviously if someone wants to become a cricketer, let's give them the opportunity. बिल्कुल टाइम लगेगा इस चीज़ में, क्योंकि जब तक लोकल प्लेयर्स नहीं आएंगे ना तब तक एट टाइम्स आपकी टीम अच्छी बन जाएगी. जब आपके जो भी एक्सपर्ट्स हैं इधर उधर से टीम इकट्ठी करके उनकी एज उस एज ग्रुप में प्लेयर अच्छे मिल गए आपको, यू माइट मेक अ गुड टीम एंड देन सडनली वो रिटायर होंगे या फिट नहीं रहेंगे खेलने के लिए, देन आपके बैकअप में वो प्लेयर आते हैं कि नहीं आते हैं, तो वो टफ है. नेपाल के लिए स्टिल हम इसलिए होपफुल है कि उनकी लोकल क्रिकेट बहुत स्ट्रॉन्ग है, लोकली फॉलो है, मतलब लोग फॉलो करते हैं क्रिकेट को बहुत ज़्यादा, और बहुत जल्दी हमें कोई 3-4 साल में उम्मीद है कि उनकी क्रिकेट कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के आसपास हमें नजर आएगी. वहाँ पे मेजर स्पोर्ट है ना क्रिकेट, इटली में जो है वो नहीं है. मेजर Definitely football is a priority. फुटबॉल प्रायोरिटी है ये, बट ऑब्वियसली जब आप रिप्रेजेंट करते हैं अपनी कंट्री को इस तरह के मेगा इवेंट्स में, तो कहीं ना कहीं जाके हलचल होती है. जैसे यूएसए में जब यूएसए पाकिस्तान से जीता तो अब आप देखें कि वहाँ पे भी क्रिकेट के ऊपर बात होना शुरू हो गई. तो ऐसे ही चीज़ें स्टार्ट होती हैं. आज जो इटली जीता है कल, उससे ऑब्वियसली वहाँ पे भी हेडलाइंस लगी होंगी. यू नो ऐसे ही कल्चर डेवलप होता है. इट्स जस्ट अ फर्स्ट स्टेप फॉर इटली या यूरोप में क्रिकेट का. तो बट जो स्टोरी आपने सुनाई, इट्स नॉट द फर्स्ट वन. इस तरह की बहुत सारी आपको एसोसिएट मेंबर्स में इस तरह की स्टोरीज मिलती हैं, विच इज़ नॉट नाइस. बड़ा ऑब्वियसली फील होता है, दुख होता है, क्योंकि जितने भी क्रिकेटर्स हैं हमारे कोलीग हैं, फेलो प्लेयर्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, बट एक ही फर्टर्निटी होती है क्रिकेट की. तो दुख होता है. होप के आईसीसी कुछ इसके ऊपर कोई ऐसा फार्मूला लेके आए कि कुछ ना कुछ जो है एसोसिएट मेंबर्स को भी रीज़नेबल उनके रिस्पेक्टिव क्रिकेट बोर्ड जो है उनको फाइनेंस किया जाए, ताकि थोड़ी सी चीज़ें बेहतर की जाए. ऑब्वियसली बहुत मैसिवली आप नहीं कर सकते, एंड ऑफ द डे इट्स द होम क्रिकेट बोर्ड, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. बट आईसीसी को भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस चीज़ को लेके रेवेन्यू के उसमें करना चाहिए, ताकि प्लेयर्स को एटलीस्ट दे गेट मोर अपॉर्चुनिटी. वैसे ऑन अ लाइटर नोट, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान का बड़ा हाथ रहा है हौसला देने में एसोसिएट नेशंस को? कभी यूएसए को प्रमोट कर देते हैं, इटली होता हमारे ग्रुप में, हो सकता है इटली को भी. नहीं, आप साउथ अफ्रीका देखें, साउथ अफ्रीका नीदरलैंड से हारा है एक वर्ल्ड कप में. होता रहता है. ये ऐसे होता है असल में. Part of the game. Part of the game, like हमारी रीसेंट पास्ट में कह सकते हैं कि थोड़ा ज़्यादा हो गया होगा, लेकिन बट आप देख लें इंग्लैंड जो है वो कितनी दफ़ा नेदरलैंड से 2 दफ़ा स्कॉटलैंड से नेदरलैंड से आयरलैंड से वो वर्ल्ड कप्स में हार चुका है. यू नो अब ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे ऑब्वियसली टेस्ट प्लेइंग नेशन, मच बेटर टीम, बट वीकर टीम से आप मैच हारते हैं. ये नहीं होता कि ऑन अ गिवन डे अगर टीम एक अच्छा परफॉर्म कर जाती है, अंडर प्रेशर कर देती है आपको, तो क्रिकेट ऐसी फनी चीज़ है, वंस यू आर अंडर प्रेशर इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कम बैक. एनीवन कैन विन. T20 में तो इट्स क्वाइट मतलब नॉर्मल है, आपको कोई भी टीम किसी भी टीम को हरा सकती है, क्योंकि एक अच्छी इनिंग,
ایک اچھی over, ہاں. کسی کا ایک اوور میں بلکہ آپ میچ ہار سے جیت سکتے ہیں. تو آئی تھنک کہ T20 میں بڑا کم مارجن ہوتا ہے, اس لیے آپ کو زیادہ اپ سیٹ جو ہے وہ T20 میں دیکھنے کو ملتے ہیں. ون ڈے میں 50 اوورز ہوتے ہیں, آپ 10-15 اوور اگر برے کھیل بھی لیتے ہیں تو دین یو ہیو ٹائم ٹو ریکور. اور ٹیسٹ کرکٹ اوبیسلی وہ 5 دن ہوتے ہیں, تو اس لیے T20 میں زیادہ اپ سیٹ ہوتے ہیں کہ کوئی بھی ٹیم کو 15-20 منٹ کا فیز اگر اچھا کھیل جائے کسی بھی بڑی ٹیم پہ اگینسٹ تو وہ جیت جاتی ہے. اور اس لیے زیادہ ایکسائٹنگ فارمیٹ بھی ہوتا ہے اور زیادہ دیکھا جاتا ہے. اچھا اب ہم چلتے ہیں کل کا جو آخری میچ تھا انڈیا ورسز نمیبیا کی طرف. اب جو انڈیا تھا انہوں نے بڑا ہی اچھا ٹوٹل اسکور بورڈ پہ لگایا تھا. دے ور جسٹ اے فیو رنز شائی آف اسکورنگ دا ہائیسٹ ٹوٹل ان دا ICC T20 کرکٹ ورلڈ کپ میچ. لیکن اوور آل تھوڑی سی ان کی پرفارمنس پیچی لگ رہی تھی. پر اگر ہم دیکھیں تو ایشان کشان جو ان کے اوپنر تھے انہوں نے بڑی ہی پاور پلے میں آ کے بہت ہی بگ ہٹنگ پاور ہٹنگ کی. 61 انہوں نے اسکور کیا آف 24 ڈلیوریز. اینڈ دین ڈاؤن دی آرڈر کیم ہاردک پانڈیا جنہوں نے 52 رنز اسکور کیے. اینڈ دین تلک ورما نے بھی ایک کیمیو کھیلی, 25 رن اسکور کیے. بٹ these batters were the main reason that India was able to put up that total on the scoreboard. نمیبیا کے جو بولرز تھے ان کے جو ایکچوئل کیپٹن تھے انہوں نے بڑی ہی ٹرکنگ بولنگ کرائی ود his unorthodox bowling action. انہوں نے بہت ہی بہترین بولنگ سٹارٹس کے ساتھ 4 وکٹس حاصل کیے اور صرف 20 رنز کنسیڈ کیے. ان کے جو ایکچولی فاسٹ بولرز تھے انہوں نے زیادہ رنز کنسیڈ کیے. اور پھر جب نمیبیا بیٹ کرنے آئی تھی تو پاور پلے میں انہوں نے اچھا اسٹارٹ کیا, لیکن ایز دا اوورز وینٹ آن جو انڈیا کے جو اسپنرز تھے انہوں نے ان کو کافی آئی وڈ سے ریسٹرکٹڈ دم اور ان کو آل آؤٹ کر دیا. دین انڈیا ون بائی اے بگ مارجن بائی وننگ بائی 93 رنز ان دس میچ. But Mehak, obviously with batting, India has as always like batting ان کی obviously ایک strong point رہا ہے. لیکن اب جس طرح ایک بڑا امپورٹنٹ میچ ہمیں آگے نظر آ رہا ہے پاکستان انڈیا, obviously that is something to talk about. ہاردک پانڈیا کے اوپر اظہر بھائی تھوڑی روشنی ڈالیے گا. like the way he's looking like a big threat to any team. No, he's one of the most experienced players. پچھلے کتنے سالوں سے وہ انڈیا ٹیم کے بڑے امپورٹنٹ رکن ہیں اور بڑی میچ وننگ اننگ کھیل چکے ہیں. بالنگ میں کنٹریبیوشن دیتے ہیں اپنی. تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ان کی جو اسٹرینتھ ہے, انڈر پریشر وہ پرفارم بہت اچھا کرتے ہیں, میچ کو لے کے اچھا چلتے ہیں, فنش کرتے ہیں گیم کو. تو آئی تھنک کہ یہ ان کے اسٹرانگ پوائنٹس ہیں. کوئی بھی ٹیم ہوگی وہ ایسے پلیس سے ظاہری بات ہے اس کو اس کی بیک ہی دیکھنا چاہے گی, کیونکہ انڈر پریشر ان کی گیم ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. آئی تھنک کہ ہی از اے اوبیسلی ویری گڈ فیلڈر, بالنگ میں کنٹریبیوشن, دین نمبر 5-6 پہ آ کے جہاں پہ کنسالیڈیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی کر لیتے ہیں, گیم جہاں فنش کرنی ہوتی ہے وہ بھی کر لیتے ہیں. پاور ہٹنگ ہم نے سب نے دیکھی ہے ان کی. تو آئی تھنک ہی از اے ویری امپورٹنٹ پلیئر فار انڈیا اینڈ فار پاکستان آلسو. We have to be wary about him. بالکل he will be someone to watch definitely very closely. And اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں. we'll take a short break. Stay tuned. ہیلو اینڈ ویلکم بیک ٹو دا ڈگ آؤٹ. اب بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کل کے میچ کے بارے میں جو تھا انڈیا ورسز نمیبیا. اینڈ اظہر بھائی انڈیا کے بارے میں اگر بات جاری رکھیں تو کل ان کی طرف سے تھوڑی سی پیچی پرفارمنس نظر آئی تھی بلے کے ساتھ اور بال کے ساتھ بھی. لیکن ان کے جو 2 بیٹرز تھے جنہوں نے ان کو وہ ہائی اسکورز دیے اسکور بورڈ پہ, اس کے علاوہ آپ کو لگتا ہے کیونکہ انڈیا کی جو بیٹنگ ڈیپتھ ہے وہ اتنی ڈیپ جاتی ہے کہ ان kind of releases that mental pressure off of the players' heads کہ they know کہ چلو اگر ہم آؤٹ بھی ہو گئے تو نمبر 8 تک ہمیں پتہ ہے کہ they can go out there and score big. دیکھیں جب آپ کو اسٹارٹ اچھا ملا ہو, رنز آن دا بورڈ ہوں, ایٹ ٹائمس T20 کرکٹ میں آپ جیسے آج سکندر رضا نے بھی بات کی کہ آپ بہت اوورز جب کرنے جاتے ہیں تو ایٹ ٹائمز آپ کی وکٹس گرتی ہیں. تو آئی تھنک کہ ان کے بیچ میں اگر آپ دیکھیں تو ان کے کیپٹن نے بالنگ بھی بہت اچھی کی, ریزمس نے. تو آئی تھنک کہ ایٹ ٹائمز رسپیکٹ دینی چاہیے دوسری اپوزیشن کو بھی کہ انہوں نے وہ جو میچ کا پیریڈ ہے وہ اچھا کھیلا, جس میں انڈیا تھوڑا سا کہیں نہ کہیں لوز کیا انہوں نے وہ مومنٹم, شاید 209 سے بھی اوپر کر جائے, بٹ اٹس اے میسو ٹوٹل 209. تو اس کے اندر پھر آپ کی کہیں نہ کہیں وکٹیں بھی گرتی ہیں, فاسٹ کرکٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو آئی فیل کہ پاکستان سے جو میچ ہونا ہے دیٹ از اے ٹوٹلی ڈفرینٹ سینیریو جو پاکستان انڈیا کا میچ ہوتا ہے کہ پہلے کیا کیا آپ نے, آگے کرنا ہے ٹورنامنٹ میں, دیٹ از ٹوٹلی ڈفرینٹ. دیٹ از اے پریزنٹ مومنٹ. جو پریزنٹ مومنٹ میں اچھا پریشر کو اور کنڈیشن کو ہینڈل کرے گا ہی ول بی دا ونر. آپ نے کئی دفعہ پاکستان انڈیا کے گیمز دیکھے ہیں جہاں پر شاید ایک سائڈ بالکل آؤٹ آف فارم لگ رہی ہو, لیکن اس دن آ کے وہ بہت زبردست پرفارم کرتی ہے. تو آئی تھنک کہ
on that day जो टीम अच्छा खेलेगी कुछ भी हो Plus, it's going to be a different venue for India also, na? Yeah, that's true. वो भी एक ये बहुत बड़ा पाकिस्तान रोल प्ले के- sorry, करेगा। मैं हाँ। आपकी नहीं, बात नहीं, काट आप रहा हूँ करें। कि जो जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी में एडवांटेज हुआ था इंडिया को, थोड़ा सा वो अब पाकिस्तान के पास है, उसको एडवांटेज को पाकिस्तान को लेना चाहिए। दैट इज़ प्लेइंग एट इन वन कंट्री, उस हिसाब से पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड फॉर्म किया है, और उसमें इंडिया के पास ये है कि उन्होंने डिफरेंट जगहों पे खेलना है, इंडिया में भी खेलना है, फिर इधर आके पाकिस्तान के अगेंस्ट शायद एक ही मैच खेलना है, बट जो कम्बिनेशन पाकिस्तान कर सकता है अपनी 15 में, वो इंडिया के पास वो ऑप्शन उस तरह नहीं था। बट अगेन सिमिलर कंडीशंस है, इंडिया काफ़ी दफ़ा खेल चुका है, बट आई फील कि इसका एडवांटेज पाकिस्तान को उठाना चाहिए कि जो स्पिन अटैक वहाँ लेके गए में मोस्ट प्रॉब्ली वहाँ पे कंडीशंस भी वैसी ही उनको मिलेंगी, और उसको यूटिलाइज करें प्रॉपर तरीके से। नहीं, अब आपने इन्होंने बात की है उनके नामीबिया के कैप्टन इरास्मस के बारे में, उनका बड़ा ही अनऑर्थोडॉक्स स्टाइल है, यू नो इट वाज a bit similar to Usman Tariq, you can say। तो आपको लगता है कि अब इंडिया को अच्छी प्रैक्टिस मिल गई है? इंडिया जिस तरह 220 12 ओवर में 15 ओवर में कर रहा था, अगर वो यहाँ खेलने आए और इस तरह किया, माई प्रेडिक्शन इज इंडिया विल लूज द गेम, बिकॉज हमारे स्पिनर्स बहुत तगड़े हैं, आप उनको इस तरह फ्रीली जाके हिट नहीं मार सकते। और अगर ऑल गन ब्लेजिंग आते हैं इंडिया, तो उस्मान, अबरार, इवन शदाब ने जिस तरह की बॉलिंग की नवाज है, आई थिंक दे विल बी इन ट्रबल। अगर वो हमें रिस्पेक्ट देंगे हमारे स्पिनर्स को, हैं तो वो पक्के खिलाड़ी सारे बैट्समैन, उनको पता है किसको कब मारना है, लेकिन अगर वो गन ब्लेजिंग आना चाहते हैं, सो आई थिंक आई वुड बी सरप्राइज कि हमारी टीम के खिलाफ ये 15 ओवर 16 ओवर 17 ओवर या 200 तक भी जाएंगे इन कंडीशंस में। सो आई थिंक श्रीलंका में यू डोंट हैव टू से इट, बट आई फील पाकिस्तान 55-45 जीत रहा है। Conditions play a huge Obviously, role. the conditions as well as obviously the approach will be different for India also. I mean, बहुत बड़ा फर्क है पाकिस्तान. Obviously, let's not forget, like we cannot write the politics that has been involved with this match as well. वो एक थोड़ा सा recently हमने वैसे देखा सोहेल भाई पिछले कुछ सालों में कि India hasn't been taking that sort of pressure that जो पाकिस्तान लेता है. लेकिन आपको नहीं लगता है इस मैच के ऊपर थोड़ा उसी टाइप का एक टेंशन सी तो बरकरार रहेगी? नहीं, इंडिया प्रेशर ज़रूर लेगा। पहले वाली इंडिया की टीम में उसमें बहुत फ़र्क है। आप उनके जो 3 की मेंबर्स थे जो हमारे अगेंस्ट, स्पेशली विराट कोहली का रोल जो रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान, अगर मैं पिछले 4-5 इवेंट्स के मैचेस की बात करूं तो उसमें विराट कोहली का बड़ा मेजर रोल रहा है, स्पेशली वाइल्ड चेजिंग। और अभी की ये जो इंडियन टीम है, येस दे लुक वेरी गुड बैटिंग साइड, और उनमें ऐसे बैटर्स हैं जो आपको लगता है कि बड़े थ्रेटनिंग हैं, बट अगेंस्ट अ क्वालिटी बॉलिंग इन अ स्पिनिंग कंडीशन। हमने एशिया कप में भी आपने देखा था फाइनल में, वी हैड देम, बट वो हमने समहाउ वी couldn't control our nerves when it matters, तो वो लेकिन हमने मैच को कंट्रोल किया हुआ था। सो यहाँ पे भी मुझे आई एम प्रीटी श्योर जिस तरह की बॉलिंग लाइनअप हमारे पास है, माद ने भी जिक्र किया, तो इट्स गोइंग टू बी अ गुड गेम, और प्रेशर इंडिया के ऊपर ज़रूर होगा, होता है। इंडिया पाकिस्तान का मैच, बेशक इंडिया जितने मैचेस भी जीता हो, जब भी वो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलेगा, कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि आपके ऊपर, यस आप बोलते नहीं आके, यू डोंट एडमिट इट इन फ्रंट ऑफ मीडिया, या आप कहते नहीं, बट होता है प्रेशर, दोनों साइड पे होता है, सिर्फ इंडिया पे नहीं होगा, पाकिस्तान टीम के ऊपर भी होगा। इसीलिए जो उन गिवन डे उन नर्व्स को बेहतर तरीके से होल्ड करेगा, वो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। पाकिस्तान इंडिया का मैच स्किल से ज़्यादा नर्व्स की गेम होती है, और जो और क्राउड हमने पिछले कुछ मैचेस हारे हैं इस वजह से, जैसे मैंने भी कहा कि एशिया कप के भी मैच की मिसाल देख लें, तो हमने वो स्किल्स की वजह से नहीं हारे, हम वो हारे अपनी नर्व्स को कंट्रोल ना कर पाने की वजह से। जब आखिरी के 2-3 ओवर रह गए, उनको बहुत ज़्यादा रन चाहिए थे, विकेटें भी हमने ले ली थी, बट वी लेट इट गो। सो मेरे ख्याल में हम सारे यहाँ पे 3 बैठे हैं, मेरे ख्याल में इंडिया के अगेंस्ट क्रिकेट खेले हुए हैं, तो उसमें हमेशा नर्व्स की गेम होती है, स्किल्स से ज़्यादा वो नर्व्स के ऊपर आपके आ जाता है कि आप जितना बेहतर तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं। तो आई एम प्रीटी श्योर, क्योंकि ये भी इंडिया की टीम एक नई टीम है, अब वो भी रीबिल्डिंग वाले हैं, वो जो पुरानी एक टीम थी रोहित शर्मा जिसको लेके चल रहे थे काफ़ी अरसे से, अब ये वो वाली इंडिया की टीम नहीं है। येस ऑन पेपर दे लुक स्ट्रॉन्ग, ये नहीं कह रहा कि वो वीक टीम है, बट अभी वो वाला एक्सपीरियंस इनमें नहीं है जो रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा और वो लेके आते थे, विराट कोहली जो लेके आते थे। तो पाकिस्तान हैज़ अ वेरी गुड चांस टू विन दिस गेम। और ऑब्वियसली ये जो पीछे थोड़ा चला है, पॉलिटिकली चीज़ें चली हैं, उनका भी कहीं ना कहीं दोनों टीम्स के माइंड में ये चीज़ होगी। सो लेट्स सी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान should come नहीं, ऑब्वियसली पाकिस्तान हैज़, मेरे ख्याल में
इंडिया के अंदर मैच होता तो शायद मैं ना कहता, बट श्रीलंका में जिन कंडीशन में मैचेस हो रहे हैं, द वे आवर स्पिनर्स आर बॉलिंग, ठीक है, उसमें शादाब सबसे स्पेशली मुझे अच्छा लगा कि अब जो कम सिंस इज कम बैक ही इज बीन बॉलिंग सुपरबली वेल, जगह पे फेंक रहे हैं। इससे पहले ही होता था, आप देखें शादाब बीच में 2 से 3 एक ओवर में बॉलें या तो फुल टॉस कर देते थे या हाफ वॉली, लेकिन इस पूरे स्पेल में अगर आप जितने मैचेस ये खेले हैं तो आपने बहुत कम बॉलें उनकी देखी होंगी जो जगह पे नहीं गिरी। सो एज ए लेग स्पिनर इफ यू लैंडिंग ऑन अ राइट एरिया, It's very then effective. it's very difficult. Sohail bhai, how did you handle those nerves जब वो 2 छक्के आपने लगाए? तो उसके बाद तो नहीं, what you hard देखिए work? ये प्रैक्टिस इट सेल्फ बिलीव, आपको नर्व्स क्या है, अपने ऊपर बिलीव होता है ना, Yeah. कि जब आप प्रेशर आता है तो यू कीप योर बिलीव इन योरसेल्फ, बस यही नर्व्स हैं। अगर आप वहाँ पे जब आप डाउट्स अपने आप के ऊपर डाल देंगे, यार शायद मैं कर पाऊंगा कि नहीं, तो फिर ऑब्वियसली फिर आप आप नहीं गेम कर उधर ही पाते। हार जाते तो हैं, नर्व्स यही है happens, कि यू कीप ऑन बिलीविंग रिगार्डलेस के सामने जो भी ऑपोजिशन है, जिस मर्जी आप सिचुएशन में मैच खेल रहे हो, तो आप अपनी नर्व्स को ऐसे ही कंट्रोल करते हो कि यू कीप ऑन बिलीविंग इन योरसेल्फ। अच्छा, मैच आई मीन ये शो ख़त्म करने से पहले आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन क्विक क्वेश्चन बुमराह के बारे में। इंडिया हैज़ बीन मेकिंग हिम बॉल आउट ऑफ द पावर प्ले। हमने देखा कि कल भी उस 7th ओवर में आके उन्होंने बॉलिंग की थी, तो आपको लगता है कि इंडिया शायद अब उन्हें पावर प्ले में पाकिस्तान के अगेंस्ट यूटिलाइज करना चाहेगा, एंड डू यू थिंक दैट इज़ व्हाट दे शुड डू? नहीं, मेरे ख्याल में वो बिकॉज हार्दिक पांड्या इज बॉलिंग विद न्यू बॉल, वो लेटली पिछले साल एक में मैंने देखा है ही लर्न हाउ टू स्विंग द बॉल। उससे पहले वो हमेशा आते थे, जोर लगाते थे, यूज टू ट्राई टू बॉल क्विक, बट अभी उन्होंने स्किल्स के ऊपर काम किया है, तो इस वजह से उनका बेहतर यूटिलाइजेशन वो समझते हैं कि पावर प्ले में है विद द न्यू बॉल व्हेन इट स्विंग्स अ बिट, एंड देन अर्शदीप ऑब्वियसली अ स्विंग बॉलर। तो बुमराह एक ऐसा बॉलर है वो स्विंग्स, और अगर स्विंग नहीं भी है तो ही हैज़ कि वो पेस भी है, वेरिएशन भी है, एंड मेंटली भी बड़ा क्लेवर है, तो वो एक कंप्लीट बॉलर है जिसको आप किसी भी फेज में बॉलिंग करा सकते हैं। बट वेयर एज हार्दिक पांड्या, इवन अर्शदीप इज डजंट हैव दैट सेम स्किल लेवल कि आप उनको किसी भी जगह बॉलिंग देंगे तो वो आपको वैसी ही, तो इसलिए बुमराह के ओवर वो जहाँ, और T20 में हमेशा सबसे मुश्किल ओवर छठा ओवर होता है पावर प्ले में करना, कि जब आप के विकेट्स ना गिरे हों तो बैट्समैन उसको कैपिटलाइज करने की कोशिश करते हैं, तो आई थिंक कि वहाँ पे वो उसको उनकी यूटिलाइज जगह फर्स्ट बनती चेंज है। पे कर रहे हैं। सो मेरा नहीं ख्याल कि पिछले कुछ अरसे से अगर वो एक गेम प्लान को लेके चल रहे हैं तो अब वो पाकिस्तान के अगेंस्ट चेंज करेंगे। I'm gonna have to take this opportunity। इमाद भाई से मैंने सवाल करना है, लेकिन डेफिनेटली अभी आज के ये जो इंडिया के साथ जो मैच हुआ है, इंडिया का जो मैच हुआ है, डेफिनेटली अभी जो इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होगा इसके ऊपर वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस इन द स्पिन डिपार्टमेंट। आपको इसके ऊपर काफ़ी बातचीत वैसे चल रही है कि हाउ वुड आवर टीम लुक लाइक ऑन द गिवन डे। आपको क्या लगता है, लाइक व्हाट वुड बी द सेटिंग कीपिंग इन माइंड कि इंडिया किस किस का भला चल रहा है और आप किन स्पिनर्स के साथ जाएंगे? लुक, लास्ट गेम जो हुआ था उसमें उन्होंने सलमान को हटा के उस्मान को डाला था, विच वर्कड। आई थिंक स्पिन हैवी इन कंडीशन में, स्पिन हैवी 4 स्पिनर आपके खेले हैं, साइम भी कर सकता है, सो स्पिन हैवी। देखिए वो जो आपके जो रिस्ट स्पिनर्स हैं ना, अगर वो 12 ओवर करते हैं, अगर वो 80, 90, 100 रन भी देते हैं, लेकिन वो 6-7 आउट कर देते हैं, तो ये बात है सारी। अगर रिस्ट स्पिनर से आप जाएंगे और वो थोड़े से एक्सपेंसिव भी हो, लेकिन वो विकेट्स आपको इस तरह उस सिचुएशन में लेके देंगे जहाँ फिंगर स्पिनर कम लेके देगा। सो रिस्ट स्पिनर्स के साथ मैं तो सारे रिस्ट स्पिनर्स के साथ जाना चाहूँगा। ओके, वेल चलें अब हम आते हैं अपनी शो के लास्ट फ्यू मिनट्स की तरफ। तो जाने से पहले बिफोर वी साइन ऑफ, लेट्स टेक प्रेडिक्शंस लाइक वी ऑलवेज डू फ्रॉम आवर एनालिस्ट। आज के जो अभी जो मैच चल रहा है दैट इज़ बिटवीन UAE एंड कनाडा, फिर उसके बाद आएगा USA एंड नेदरलैंड्स। सो UAE एंड कनाडा, इमाद, हू डू यू थिंक विल टेक दैट UAE। विन? ओके, अजहर भाई? UAE। आई थिंक यूएई। UAE, आप भी बता दें आपकी क्या प्रेडिक्शन? सारे कि UAE कह रहे हैं तो मैं भी UAE चलें UAE, वैसे आप चेंज अप करने के लिए बोल सकते हैं, इट्स ओके चलिए, आप UAE। कनाडा ओके, अब USA नेदरलैंड्स की तरफ चलते हैं, ये अच्छा मुकाबला होगा। अजहर भाई, हु डू यू थिंक विल टेक दिस? कौन कौन? USA एंड Oh, नेदरलैंड्स। that's a tough one. Yeah, I'll go with Netherlands. Netherlands. USA। I'll go with Netherlands. USA then। USA, okay, that's tied. Let's see what happens. अच्छा, मैं अपनी भी बता दूँ, मेरे कान में आवाज़ आ रही है, अपना भी बता दें। I think USA will take this one, this last So one. that's 3 against 2, USA. right? हाँ, 3 against 2. Let's see how accurate that is. But thank you so much, guys, for being here with us yet again and giving us, you know, your informative analysis, which really is knowledgeable for all of us watching out there. And thank you so much, Saad, for Thank you. I'm being sure a we- wonderful co-host today. शहजाद भाई को आज हमने कमी हाँ, उनकी कमी ज़रूर महसूस की है, but guys don't worry, वो
सिर्फ एक दिन के लिए गए हैं और वो कल वापस आ जाएंगे. But Saad, you were great and thank you so much for guys. being here with us. Pleasure. That is all we have for you today. लेकिन कल हम of course डग आउट पर वापस आएंगे और कल के मैचेस भी मैं आप लोगों को बताती चलूँ. It is Ireland versus Oman. दूसरी गेम है England versus Scotland. और जिस तरह इंग्लैंड ने परफॉर्म किया है अपने वर्ल्ड कप कैंपेन में सोफा, ये इनके लिए बहुत ज़रूरी गेम होगी. एंड स्कॉटलैंड को भी हम पीछे नहीं छोड़ सकते. So we will be talking about that as well. And then of course the last game of the evening will be New Zealand versus South Africa. Another match to watch. So make sure you do tune in tomorrow at the same time and at the same place to watch our wonderful analysts and to watch all the informative insights that we give you. But until then, it's goodbye from all of us here at The Dugout. Welcome to the